Hello students, how are you? Hope so you are well and safe at home. So today on 21st of September, day Monday, for class 11th chemistry we have the same chapter, that is states of matter, unit number 5. Today we will discuss about the second law of gases, that is Charles law. What is Charles law? Actually Charles law and Gay-Lussac both have done the combinedly of working on gases molecules. Clear? According to Charles, if a fixed amount of gas or the fixed mass of a gas, we take the pressure is constant, then with the increasing of the volume, temperature is also increases, or simply we can say as the temperature will be increases for a gas, the volume also increases, and for the decreasing of the temperature, volume is also decreases. Clear? So at a constant pressure for a fixed mass of a gas, volume is directly proportional to absolute temperature. Okay? So according to the Charles law, at constant pressure, the volume of the gas for a fixed mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. Now the question arises, what is absolute temperature? According to Charles, or according to Gay-Lussac's working, he demonstrated that with the increase of the temperature, volume continuously increases, but every 1 degree rise in temperature, volume increases by 1 over 273.15. Every decrement of the temperature, 1 degree decrement of the temperature, volume is also decreases by 1 over 273.15 with their starting volume at 0 degree सेंटीग्रेड. सिंपली वी कैन से किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कराते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे हम 73 डिग्री सेंटीग्रेड से 74 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, हम 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, अगर हम किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम इंक्रीज कराते हैं तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वहां पे 1 over 273.15 किसकी रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रिस्पेक्ट में. क्लियर? अगर हम डिक्रीमेंट कराते हैं तो 1 over 273.15 डिक्रीमेंट हो रहा है किसकी रिस्पेक्ट में, हर डिग्री सेंटीग्रेड से, कहां से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से. सो बाय दिस वी कैन से अ न्यू फॉर्मूला. There are two temperatures at T degree centigrade and 0 degree centigrade. So at T degree centigrade, the volume is suppose Vt, and for 0 degree centigrade, the volume is suppose V. If the volume is Vt at T degree centigrade and V0 is at 0 degree centigrade. Clear? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना है V0 एंड T डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है Vt. तो एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 over 273 ऑफ द इनिशियल ऑफ द 0 डिग्री सेंटीग्रेड. Clear? And also decreases by 1 over 273 from the initial 0 degree centigrade. So the formula will be Vt is equal to V0 plus
T/273.15 इंटू V। ये T रिप्रेजेंट कर रहा है जिस टेम्परेचर पे इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ये उसकी रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है, किसकी रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में। क्लियर? सो दिस फॉर्मूला वी कैन राइट इन दिस मैनर, V नॉट, ये कॉमन पार्ट निकाल देंगे, रिमेन के 1 प्लस T ओवर 273.15। Clear? Any doubt? If we take the LCM, so Vt is equal to V naught 273.15 plus T over 273.15. If we put different temperatures at T like that, at 0 degree centigrade, so Vt is equal to V0 273.15 plus 0, that is 273 over 273.15, that is 1. So Vt will be equal to V0. So 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो न्यू T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। इफ वी पुट 273 in place of 0 degree centigrade or in place of the T, it means in place of the T if we put 273.15, okay, अगर मैं इस T की जगह क्या पुट कर दूं, so if we put 273.15 in place of the T, clear, so the Vt will be equal to V नॉट, ओके। सो जो वॉल्यूम होगा वो जस्ट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि जितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट होगा वॉल्यूम में, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज किया जाएगा तो 1/273.15 का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट टू माइनस साइन, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ओके। If we put 273.15, clear? अगर मैं यहाँ पे 273.15 पुट कर दूं, ओके, so it means it will be represent to 0 and Vt equal to also 0. तो Vt 273.15 पे माइनस 273.15 पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 0, ओके। तो माइनस, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीमेंट करते हैं तो माइनस के 273 पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो 0 हो जाता है। और ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसका मतलब माइनस 273 से नीचे जाने पे, ओके, माइनस 270, अभी मैंने यहाँ पे पुट क्या किया था, 273 प्लस में, ओके, जब 273 प्लस में पुट किया था तो आंसर आया था 2V, मतलब वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो 273.15 इंक्रीमेंट करने पे वॉल्यूम डबल हो जाता है और माइनस 273.15 केल्विन पे जाके टेम्परेचर पे ये पोर्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड थिंग, दिस पोर्शन 273.15 minus plus T, this representation represent to the new temperature according to the new scale, and that scale is known as absolute scale or absolute temperature. This temperature is known as the absolute temperature and the scale is known as absolute scale or Kelvin scale, okay. So किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होता है तो कितना ऐड करते हैं, 273.15। मोस्ट ऑफली यही यूनिट की जाती है, अदरवाइज हम 273 पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू हम उसमें ऐड कर देते हैं, क्लियर। अगर हम इस चॉस लोग को थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके जाए, न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं थी, सिर्फ वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए है। अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए बात करें, सो Vt इज इक्वल टू V0, Vt इज इक्वल टू V0,
273.15 प्लस T ओवर 273.15. Clear? Vt is equal to V0 273.T and this is 273.15. So this is the temperature. This is the temperature at 0 degree centigrade and this is the temperature of T degree centigrade. So मैं इसकी प्लेस पे means this is T 273.15 plus T and this is represent to only T 273.15. Okay, अगर मैं ये मेंशन करता हूँ, so what we can write here, Vt is equal to V naught, this is the part of capital T and this is the part of स्मॉल टी. मतलब ये टेम्परेचर इसका रिस्पेक्ट में है और ये टेम्परेचर इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है. क्लियर? इफ वी राइट दिस वन T1 और दिस इज द T2, सो वी कैन राइट इन दिस मैनर Vt इज इक्वल टू V नॉट T ओवर T. ओके, Vt ओवर V नॉट इज इक्वल टू T ओवर T. और इफ वी राइट दिस वन फर्स्ट वॉल्यूम, or suppose it is the second volume, this is the first volume, this is obviously the second temperature, this one is first temperature, so we can write V2 over V1 and this is T2 over T1, or simply we can say V1 over V2 is equal to T1 over T2. Clear? Or simply we can say V is directly proportional to T at constant pressure for a fixed amount of the gas. So this is the Charles law. Charles law में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली का रिलेशन है. ओके, इफ वी अरेंज द प्लॉट बिटवीन V वर्सेस T, so there will be straight lines at constant pressure. प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट. क्लियर? देयर इज अ P1, P2, P3 एंड P4. इफ वी प्लॉट डिफरेंट आइसोबार, कांस्टेंट प्रेशर पे प्लॉटिंग की गई ग्राफ को हम आइसोबार्स कहते हैं. क्लियर? क्या कहते हैं? आइसोबार. लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं वो आइसोथर्म कहलाते हैं और ये ग्राफ्स क्या है? आइसोबार. क्लियर? सो at constant pressure P, P1, P2, P3 and P4 at different pressures, clear, we plotted the different graph that is started from the origin. Clear? ये origin से start होंगे. Clear? And these are the isobar. Any doubt? If we take any one of the at any constant temperature और मैं plotting करूँ कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, आप देखिए P1 का वॉल्यूम सबसे कम है और P4 का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है. आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा. जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा. क्लियर? सो अगर आप प्रेशर सबसे ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? वॉल्यूम है. तो प्रेशर सबसे कम किसका होगा? P4 का प्रेशर होगा. किसका प्रेशर होगा? P4 का. और सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा? P1 का होगा. क्यों? क्योंकि इस समय वॉल्यूम सबसे कम है. Clear? Thank you, students.